Children, here we are going to start with man, the super consumer. Earlier in the past, man had a harmonious relationship with the environment. But with the change in time, or we can say because of the increasing population and increasing desires of human beings, man has now started exploiting various natural resources. Now, because of this, species extinction, resource depletion, pollution, over exploitation of land, water, and forest have occurred. All the above activities of man resulted in the loss of biodiversity. Now, let's see what are the factors responsible that led to the depletion of resources. The first one is overuse or irrational use of resources. Now, irrational use of resources means not using the resources wisely. So, greed of human beings leads to the over exploitation and overuse of resources. Example, overfishing and continuous agriculture means increasing the productivity. So, irrational use means not using our resources wisely. Example, if one person has to go anywhere, he or she can use any other mode of transport except cars, because two wheelers can also be used, or if there's a short distance, that person can go by walking. But many of the people means like going for a long distance also or a short distance also, people prefer using cars. Now, the second one is non equitable distribution of resources. Natural resources are not equally distributed throughout the earth's surface. There is an over exploitation of the resources where it is found to supply them to the place where they are not found. So, this non equitable distribution of resources and its over exploitation also result in the depletion of resources. Now, technological and industrial development. The newly set up industries raise the demand of resources like minerals, fuel, water, land, etc. These industries deplete the natural resources. Why? Because they require raw materials, and also they contaminate air, land, and water. Now, the next one is overpopulation. The rise in population increases the demand for food, shelter, clothes, water, electricity, healthcare, transportation, etc. Now, increase in demand of food leads to intensive cropping, leading to decrease in soil fertility and desertification. Now, what do you understand by intensive cropping? Intensive cropping means growing variety of crops one after the other on a single piece of land. Now, because of this, the fertility of soil decreases. Now, let's see the major consequences of resource depletion. Natural resources are interconnected, and so impact created by one resource affects human beings in number of ways. The first one is imbalance in nature. You all know that there is a balance in nature. Because of the industrialization, transportation, mining, and deforestation, etc., many more things, the ecological balance has been disturbed. Why? Because for industrialization, the raw materials are required. So, for this, deforestation occurs, and because of deforestation, there is a rise in temperature and change in rainfall pattern. So, deforestation also leads to soil erosion, means the removal of the top fertile layer of the soil, floods, and droughts. So, this imbalance in nature is a major consequence of resource depletion. Now, the second thing is shortage of materials. Depletion of resources causes shortage of materials. This is caused by urbanization, overpopulation. Now, what is urbanization? Movement of people from rural to urban areas. Now, the demand exceeds the supply because the productivity
is at a particular rate, but if the demand is increasing, then the supply decreases. Since fossil fuels like coal, oil, petroleum are non-renewable and they take millions of years to form, it is necessary to reduce the dependence on such energy sources and look for alternative ones like solar energy, wind energy, geothermal energy. Now, moving on to the third one, struggle for existence. There would be struggle for existence between human beings and animals for the available resources. Most of the time, beings win because they destroy the natural habitat of the species living there, and therefore the species become extinct also. Now, the next one is slackening of economic growth. Slackening means decrease in the economic growth. Now, the more the amount of resources, more is the number of goods a country can produce and it can export, leading to the increase in the economic growth. Now, in the countries where the population is increasing, and or we can say that the large population is there, so that country has to fulfill the needs of the people. So there is less export, and because of that the economic growth of the country reduces. Now, what are the other effects related to the depletion of resources? The first one is removal of top soil. The upper layer of the soil is the most productive and fertile layer. Now, top layer of soil reduces, or we can say is removed due to deforestation, faulty agricultural practices, etc. Then deforestation. Deforestation or cutting of trees result in the rise in temperature, and because of that less rainfall, soil erosion, decrease in forest productivity, loss of habitat for large number of species of fauna and flora occurs. Desertification. Desert-like conditions is created due to soil pollution, soil erosion, intensive cultivation, salinization of soil, means increase in the salt content. So desertification means the desert-like condition is occurring. The land is becoming barren. Then the next one is depletion of groundwater. Now, because of the excessive use of groundwater, like for fulfilling the needs of the people, irrigation, etc., leads to depletion of groundwater, which is a very important water resource. So these were the points. Let us quickly revise what I have explained you here in this video. मैंने आपको बताया कि मैन क्या है, एक सुपर कंज्यूमर है. मैन का उसके एनवायरनमेंट के साथ एक बहुत ही हारमोनियस रिलेशनशिप था, मींस उसकी कद्र करता था. लेकिन अब टाइम के साथ क्या हो रहा है कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो जैसे जैसे और पावरफुल होते जा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, लोगों की डिमांड भी बढ़ रही है. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, रिसोर्सेज का अमाउंट कम हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, लैंड, वाटर और फॉरेस्ट का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है. तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो मैंने अभी आपको बताई, इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी भी क्या हो रही है, कम हो रही है. अब देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं. पहला है ओवर यूज़ या इरैशनल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. मींस रिसोर्सेज को एक्सेसिव अमाउंट में यूज़ करना, उसके साथ साथ उनको वाइजली ना यूज़ करना. ह्यूमन बींग्स की जो ग्रीड है, जो लालच है, उसकी वजह से ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ओवर यूज़ हो रहा है रिसोर्सेज का. मींस एक्सेसिव फिशिंग हो रही है, कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर हो रहा है. तो इरैशनल का मतलब होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ नहीं कर रहे हैं. इसका मतलब एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि जैसे अगर किसी एक इंसान को जाना हो तो वो अपने लिए अगर कार यूज़ कर रहा है तो वो एक वाइज यूज़ नहीं है. उसकी प्लेस पर वो या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकता है या फिर वो टू व्हीलर्स भी प्रेफर कर सकता है.
या अगर शॉर्ट डिस्टेंस है तो वो वॉकिंग भी कर सकता है। अब बात करते हैं सेकेंड चीज़ की। सेकेंड पॉइंट है नॉन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, हमारे अर्थ पर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, इसीलिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन होता है रिसोर्सेज का उस जगह पर जहाँ पर ये पाए जाते हैं, और उसको दूसरी जगह पर भेजा जाता है जहाँ पर ये नहीं पाए जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है रिसोर्सेज का, इसकी वजह से भी डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। जहाँ पर होता है वहाँ के लोग इसको एक्सेसिव यूटिलाइज करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जो नई इंडस्ट्रीज़ बनाई जाती हैं वो क्या करती हैं, रिसोर्सेज की डिमांड जो है उनकी बढ़ जाती है, उनको रॉ मटेरियल्स चाहिए होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, फ्यूल, वाटर, लैंड एक्सेट्रा। तो ये इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट करती हैं, उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी के दौरान लैंड, एयर और वाटर को कंटामिनेट भी करती हैं, पॉल्यूशन भी कॉज करती हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जिसे कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब की डिमांड बढ़ रही है। और ये जो डिमांड है फूड की, इसकी वजह से इंटेंसिव क्रॉपिंग होती है। इंटेंसिव क्रॉपिंग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में आप वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा एक ही टाइम पर जब हम वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज़ होने लगती है और वो एरिया डेजर्ट में कन्वर्ट होने लगता है। अब बात करते हैं मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन। मींस ये रिसोर्स जो कम हो रहा है इसके क्या रिजल्ट्स होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। सारी नेचुरल रिसोर्सेज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। सो एक से जो इम्पैक्ट होता है वो पूरे ह्यूमन बींग्स को अलग अलग तरीके से सफ़र कराता है या इफ़ेक्ट करता है। पहला है इम्बैलेंस इन नेचर। हमारा एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना हुआ है। आपको मालूम है, मैंने कहा कि जैसे ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, या और फॉर रेस्पिरेशन दे टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन ये ट्रीज़ बहुत ही लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। अगर आप ट्रीज़ कट कर देंगे तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, और इसके बढ़ने की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा, और उसकी वजह से और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब की वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। एग्जाम्पल क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता है और रेनफॉल पैटर्न में चेंज होता है। डिफॉरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन होता है, फ्लड आते हैं, ड्रॉट्स आते हैं। अब बात करते हैं शॉर्टेज ऑफ मटेरियल्स की। डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से सामान की भी कमी हो रही है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग गांव से शहरों की तरफ मूव कर रहे हैं और बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, और ओवर पॉपुलेशन की वजह से डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। इसी वजह से, क्योंकि देखिए होता क्या है, फॉसिल फ्यूल्स का अगर हम एग्जांपल लें तो मैक्सिमम पीपल, जितने भी लोग हैं, सबके पास 2 व्हीलर्स हैं, 4 व्हीलर्स हैं, और सबको फ्यूल की ज़रूरत है। और आपको मालूम है कि ये जो फ्यूल है ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये एक समय के बाद क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम दूसरे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज की तरफ जाएं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जिससे कि ये जो फ्यूल है इनका जो डिप्लीशन है हम इसको रोक सकें। अब बात करते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस की। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना। जब आपके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और लिमिटेड स्पेस है, तो उस स्पेस और उन रिसोर्सेज के लिए आपस में कंपटीशन बढ़ जाता है, ह्यूमन बींग्स के बीच में या ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के बीच में।
क्योंकि रिसोर्सेज का अमाउंट कम हो रहा है तो ये स्ट्रगल जो है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए बढ़ जाता है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्या होता है, ह्यूमन बींग्स विन करते हैं। क्योंकि ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, नेचुरल हैबिटाट को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो भी स्पीशीज़ वहाँ रह रही हैं उनके नेचुरल हैबिटाट्स को, और फिर क्या होगा, अल्टीमेटली वो स्पीशीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्ट कर जाएंगी। अब बात करते हैं स्लैकनिंग ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। स्लैकनिंग मतलब कम होना। देखिए, कोई भी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री जो होगी उसके उसके खुद के इंडिविजुअल्स के लिए डिमांड पूरी करनी है। तो जब वो खुद के इंडिविजुअल्स के लिए डिमांड पूरी करेगा तो उसके लिए चीज़ें बचेंगी ही नहीं कि वो एक्सपोर्ट करे, क्योंकि पीपल का नंबर इतना ज़्यादा है कि वो उन्हीं की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, तो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा। और अगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो इकनॉमी जो है, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो भी कम हो जाएगी। अब और क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज के, रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल यानी कि सॉइल इरोजन। अपर लेयर ऑफ द सॉइल जो होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है, वो रिमूव हो जाती है डिफॉरेस्टेशन की वजह से और गलत एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की वजह से। फिर बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। डिफॉरेस्टेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, रेनफॉल कम हो जाती है, सॉइल इरोजन होता है, फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, हैबिटाट कम हो जाता है स्पीशीज़ का, चाहे वो फौना हो चाहे वो फ्लोरा हो। अब बात करते हैं डेजर्टिफिकेशन की। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल इरोजन और इंटेंसिव कल्टिवेशन या सैलिनाइजेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू द एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, इसकी वजह से डेजर्ट लाइक कंडीशंस हो रही हैं, लैंड्स आर बिकमिंग बैरन। अगर हम बात करें लास्ट पॉइंट की तो वो है डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर का एक्सेसिव यूज़, यानी कि जैसे कि हैंड पम्प्स हो गए, वेल्स हो गए, तो ये क्या है, ये नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए होता है। यूजुअली इरिगेशन वगैरह के पर्पस के लिए ग्राउंड वाटर को भी यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से ग्राउंड वाटर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सो दैट्स ऑल अबाउट द डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू।